بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے, مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے. کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے. تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی, میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے. ادھر بیوی آ گئی, کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے, آپ پہن لیں گے, لیکن میری بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. ارے بچوں کا بھی ہوتا ہے, نیا کپڑا اس کو لے دو. ہاں میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنے گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں. فرمایا ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, اگلے مہینے مت لینا. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا, عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ ایک مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو, پہلے دے دو, ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے, ہمیں تنخواہ نہیں دینا. جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ, عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا. جب عمر ابن عبدالعزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا, انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو. کہا نہیں, آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے. اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر, آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں, ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو, اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے. ایک مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو. اے میری بیوی مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے. پھر قرض نہیں لیا, صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے, یا امیر المومنین ہے, یہ پریزیڈنٹ ہے, جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکو. ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے, ٹربل ہو جائے, 4 گنا ہو جائے. جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے. ہم ذرا سوچیں تو صحیح, یہ سودی کاروبار کرنے والے, سود اور بیاج کھانے والے, ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اسے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ, رواہ الترمذی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود, ربا, سود, اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا, ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے, 1 روپیہ میں نہیں 54, اب تو نہیں دکھتی ہے. جس نے سود کا 1 درہم کھایا, درہم ربا, سود کا 1 درہم, یاکلہ الرجل وہو یعلم, جس نے کھایا
जान बूझ कर कि ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का एक दिरहम यानी चवन्नी खाई, ये जानबूझ कर कि ये सूद का है। धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36, 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मर्तबा अगर जिना करता है उसके साथ, 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है, तो 1 दिरहम सूद का नहीं, 54 सूद की, ये 36 मर्तबा जिना से भी बढ़कर है। मौलाना क्या हो गया है आज आपको? पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है, उसकी कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है? मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, लो बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं 1 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब यह था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा, तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप, जमीन फट जाती, मैं धंस जाता, ऐसी नालायक और कमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखता। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा के अल्फाज में, अर्रिबा सबऊन खूबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह हैं। सूद और ब्याज के 70 अजाब, 70 गुनाह हैं। जहन्नम में उसकी 70 अजाब हैं। सूद और ब्याज खाने वाले के 70 गुनाह। सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 अजाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल्लहु, सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अज़ाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। अय्यन के हर रजुल्लहु, आदमी अपनी मां के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि मां के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले, लेकिन मां के साथ निकाह हो ही नहीं सकता है। मां के साथ निकाह जायज ही नहीं है। निकाह मां के साथ, मतलब जिस तरह मां के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होता है, उसको हर हाल में निकाह के बाद भी जिना माना जाएगा। तो जो शख्स अपनी सगी मां के साथ जिना कर ले, उसको जहन्नम में जो सजा दी जाएगी, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद 69 अजाब और है। मौलाना कलेजा भी निकाल दोगे आप अपना, तब भी हम सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अरे तुम 25 साल से आ रहे हो, अब तक नहीं माना तो आप क्या मानो? नहीं मानो, हम तो बोलते ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज पे गए, फरमाया मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया। लंबी चौड़ी हदीस है, पूरी हदीस में नहीं सुना पाऊंगा, उसका एक टुकड़ा बताता हूं कि मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक खून का तालाब है, उसके अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं। बदबू की वजह से वो तैरते हुए बाहर आना चाहे
फरिश्ता एक पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है, फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है, फिर किनारे आता फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे, इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो कितना खून पीते हो? तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो कितना खून पीते हो? अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम, बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यही हमारे अपने अब्दुल अजीज है, रात की तारीकी में इनकी लौंडी दूध का एक प्याला लेकर आ रही है, अपनी मालिकन को देती है। जैसी मालिकन के हाथ में उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के हाथ में दूध का प्याला आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, बीवी ये क्या है? कहा दूध तो मेरे घर में था नहीं, तुम्हारे पास कहां से आया? कहा बैतुल माल से मंगाया है। कहा बैतुल माल में मेरा माल तो नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फरमाया, मेरे प्यारे शौहर 4 दिन से भूखी हूं, कुछ नहीं मिला, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, माँ कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा मर जाएगा, आज कम से कम ये दूध पी लेने दो, अगले महीने हमें जो राशन मिलेगा एक प्याला दूध हम बैतुल माल में भेज देंगे। हमने तो बतौर कर्ज मांगा है, हमने उधार लिया, कर्ज के तौर पर लिया, अगले महीने दे देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, खबरदार, आई मेरी बीवी, अगर एक कतरा भी दूध का तेरे हलक के नीचे चला गया, आए और फौरन अपनी बीवी से प्याला छीना और अपनी लौंडी को दिया, जाओ बैतुल माल में जमा करके आओ। बीवी कहने लगी, मेरे प्यारे शौहर, मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग रही हूँ, बच्चा मर जाएगा, 4 दिन से मैं भूखी हूँ, बच्चे की जिंदगी खतरे में है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, मेरी बीवी, पेट के इस बच्चे से कह दो, पेट के इस बच्चे से कह दो कि आए बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करने के बाद वो दूध से तेरी जिंदगी बचती है, उस दूध से तुझे जिंदगी मिलती है, तो मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरा वजूद नहीं चाहिए, मुझे तेरा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। अगर तू मरता है तो मर जा, लेकिन मुझे तेरा मरना गवारा है, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं है। ये कहकर उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद जाते और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को दूध कैसे दिया है, आइंदा ख्याल रखना, अगर नहीं तुम माने तो हम ऐसी सजा देंगे कि चोरी के जुर्म में तुम्हारा हाथ भी करवा देंगे। मेरी फैमिली क्यों ना हो, तुम जीते जी पूरी जिंदगी में तुम्हें कोई और नहीं मिला, सिर्फ उमर इब्न अब्दुल अजीज का घर ही मिला था इनके घर वालों को जहन्नम में ढकेलने के लिए, तुम्हें कोई और नहीं मिला था, तुम्हें उमर इब्न अब्दुल अजीज का खानदान ही मिला था कि इनको जहन्नम में ढकेलो। आइंदा ख्याल रखना। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ हम कैसे नजर आते हैं, हमारी हालत क्या है बताइए, और फिर आज हम तसव्वुर करें, जिंदगी को देखें और देखें कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, हमारा हिसाब किताब क्या है। एक तरफ हालात ऐसे, सहाबे किराम की जिंदगी पर नजरें डालो, ये क्यों सोचते हो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहां से? अल्लाह ने पैदा किया है, इस दुनिया में उतारा है, तो रिस्क देने का वादा भी उसने किया। तुमसे ज्यादा ईमान तो उसको था, वो एक शायर था, शायर
बहका हुआ शायर मिर्जा गालिब बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी और पहले महीने की जो सैलरी मिली सबकी शराब ले आया। और शराब लेकर जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा इतनी शराब? बोला पहले महीने की सैलरी मिली शराब ले आया। कहा कि पहले महीने की तनख्वाह और पूरी की पूरी की शराब, गुजर बसर कैसे चलेगा घर का? शराबी जरूर था लेकिन ईमान देखो उसका, क्या कहता है, मेरी बीवी रोजी देने का वादा तो अल्लाह ने किया है वो देगा, शराब देने का वादा नहीं किया था वो मैं ले आया। शराब देने का वादा नहीं किया वो मैं ले आया। और इतना बड़ा पियक्कड़ था शराब का कि बीवी लानत भेजती थी, कमीने टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं कहां फंस गई है वो? तो कहने लगा कि चलो जाता हूं नमाज पढ़ने। तो बीवी देख रही कि वुजू बना रहा है, आज जा रहा है, तो कहता कि कहां जा रहे हो? बीवी ने पूछा। कहा कि बीवी आज 2 दिन से शराब मिली नहीं पीने को। तो कहा फिर? जा रहा हूं मस्जिद में नमाज पढ़ने। चलो अल्लाह का शुक्र है सुधर तो गए। कहा सुधरा नहीं हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ मांगूंगा कि अल्लाह शराब दे दे, शायद नमाज के बाद अल्लाह सुन ले। और गया वो नमाज पढ़ने, असर का वक्त था, 4 रकात उसको पढ़ना थी, 2 ही पढ़ पाया कि किसी ने सामने से उसको शराब की बोतल दिखा दी। उसने 2 ही में सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम भागा और बोतल ले लिया। और फिर घर आया, बीवी ने कहा वाह नमाज पढ़ते ही तुम्हें शराब भी मिल गई, सुन ले। कहा बीवी खुशी की बात तो यह है कि अल्लाह ने 2 ही रकात में सुन ली, तो हमने 4 पढ़ी ही नहीं। मेरा रब इतना मेहरबान, उसने 2 ही में सुन ली। जब 2 ही में हमने हमारी दुआ सुन ली तो 4 पढ़ने की जरूरत क्या थी? ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में गुजरे। तकवा की जिंदगी अपनी भरिए, अपने जिंदगी में तकवा लाइए। मेरे भाइयों, उमर इब्न अब्दुल अजीज से सीखिए तकवा क्या होता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए तकवा क्या होता है। हजरत अबू बकर से सीखिए। एक गुलाम ने खजूर लाया और खिला दिया, अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया। गुलाम ने पूछा अरे ये क्या है? रोजाना पूछते थे कहां से लाए, जब मैं बताता था तब खाते थे, आज पूछा ही नहीं, आज भूख ज्यादा लगी थी इसलिए मैं खा गया। कहा रोजाना कमा के लाते थे, आज भी कमा कर लाए होंगे? तो कहा कि आज ही कमा कर नहीं लाया हूं, रोजाना तो मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की है मैं। फिर अरे वो किसी दोस्त की बीवी को मैंने देखा, उसका पेट बड़ा था, तो मैंने उसको देख के कहा कि भाभी को बेटा होगा। कहावत गढ़ी थी मैंने। तो उसने पूछा था मुझसे, मेरे दोस्त ने, तुम्हें कैसे मालूम कि बेटा होगा? तो कहा मैं तो पेट देख के बता देता हूं कि बेटा है कि बेटी है, बहुत पहुंचा हुआ हूं। ये मैंने 1 महीना पहले अपने दोस्त से कहा था, आज मेरे दोस्त को बेटा ही हुआ है उसकी बीवी को। तो आज वो खजूर लेके आया और रास्ते में मिल गया, देने लगा, कहने लगा अरे भाई तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, तुमने 1 महीने पहले बेटा बताया था, आज बेटा ही हुआ मेरे घर में। वाकई तुम यार पेट देख के बता देते हो, तुम तो बहुत माहिर आदमी हो। अब उसने दिया खजूर तो मैंने ले लिया, और मैं लाया, वो आपने पूछा नहीं, वो खा लिया। तो कहा कि तुम्हें मालूम था उसके पेट में लड़का है? कहा नहीं, ये किसको मालूम? फिर अरे मैंने तो धूल में लाठी मारी और निशाने पे लग गई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था और उसको हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो हराम है, मां के पेट में बेटा है बेटी है तो सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर अरे अल्लाह की बात आप लोग करने कर रहे, हम तो भाई मोमिन नहीं, हम तो हमें मिला, हम ले आए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तो मैं तो खा गया, ये तो हराम था। तो कहा भी आप समझे? का पानी लाओ, पानी पिया। ओफो, 1 खजूर खाया था जिंदगी में, वो भी धोखे से। पानी पिया, बुखारी की हदीस के अल्फाज, 3 उंगली ली मुंह में आ करके कुल्ला किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली और फिर थूका, फिर पानी पिया और फिर उंगली डालकर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते गए और कै करते गए जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना खाया था खजूर सब निकल गया होगा। उसके बाद कहा
جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا سا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے بدہوش ہو جائیں گے، ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا مال ہے یا حرام کا، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، وہ آنے دو جہاں سے بھی آ رہا ہے۔ آج یہی سوچ بن چکی ہے ہماری، مال جہاں سے آ رہا ہے تو حلال کا یا حرام کا ہمیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، ورنہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ تو یہ تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر، میں نے اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری کا واقعہ تھا، میری ماں بہنوں تم سنو، تمہارے لائق ہے واقعہ، کہ ایک شخص ہے اس کی بہن چچیری چچا زاد، اور چچا زاد بہن سے رشتہ جائز ہے، لیکن یہ لڑکا اپنی اس چچیری بہن پر عاشق تھا، لیکن محبت ایک طرفہ تھی۔ اس لڑکی کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی مجھے چاہتا ہے، ایک طرفہ محبت اپنے چچا کی زندگی میں یہ اس لڑکی سے نہیں مل سکا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن آیا لڑکی کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا، پھر ایک دن آیا کہ لڑکی کا شوہر سخت بیمار ہو گیا، اس کے گھر کھانے کے لالے پڑنے لگے، دوا کا پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے چچیرے بھائی یبنام میری کچھ مدد کر، آئے میرے چچا کے بیٹے تیری بہن اس وقت بہت پریشان ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری کچھ مدد کر دے۔ اس نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی کہ آئے میری چچیری بہن ہم تم کو بہت دنوں سے چاہتے ہیں، اپنے چچا کی زندگی میں ہم اپنا پیار کا اظہار نہیں کر پائے، مجھے آج بھی تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن وعدہ کرو کہ آج کی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہوگی، آج کی رات تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگی۔ اس کی نظر بچوں پر گئی، لیٹے ہوئے بستر پر لمبے لمبے اپنے شوہر کی طرف گئی، اللہ کون سی امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے، اس کے پاس ساری تو رات میں سونے کی بات کر رہا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانتی تو میرا شوہر بیمار، میرے بچے بھوکے، میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے اگر تیری یہی شرط ہے تو مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے اور بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تیری یہ شرط منظور ہے، تو مجھے کچھ درہم دے دے، مجھے کچھ دینار دے دے، ہاں آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے خوشی خوشی دے دیا، یہ گھر چلی گئی، کیونکہ شوہر بیمار تھا، وہ سویا، اس نے بچوں کو بھی کھلایا پلایا اور سلا دیا۔ جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو یہ گھر چھوڑ کر آتی ہے اور اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دروازہ کھولا، اس نے اپنی بہن چچیری بہن کو دیکھا، اندر آنے کو بولا، یہ اندر جاتی ہے، اس نے کہا ذرا بستر پر آؤ، لیکن یہ لڑکی ڈر رہی ہے، یہ کانپ رہی ہے، یہ تھرا رہی ہے، اس کے ہاتھ ہل رہے ہیں، اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا، اس لڑکی نے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ
यबनाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर। हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूं, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज़, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अज़ाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह या इब्नम, ऐ चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया। आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। तो वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले, तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। उसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है, थर्रा रही है। तक़िल्लाह अपना, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरे कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदानी जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदानी जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स मोजे, और मैदानी जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं खल्लाद की माँ हूँ, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूँ। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा तेरा बेटा कत्ल हो गया है और तू चेहरा छिपाए हुए है, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं, कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा अरे मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं? कहा तुम इस हाल में भी ये देख रही हो? अरे औरतें तो पागल हो जाती हैं अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी इतना पर्दा किए
लिए हुए हो। कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मेरे बेटे का जनाजा निकला, हम अपनी शर्म हया का जनाजा क्यों निकालें? ये कौन सा पर्दा था? इस हाल में भी वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को खोया है, पर्दा नहीं खो सकती हो, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकाल सकती हो। ये चंद बुनियादी बातें तकलीफ के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी है। उठने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मस्जिद का काम है आपका, तो यहाँ हो रहा है। हमने जिंदगी में कभी चंदा वंदा किया है नहीं, ना मैं जानता हूँ चंदा क्या होता है। एक दो बार मैंने निकला हूँ अपने इलाके की मस्जिद के लिए और कभी मदरसे के लिए, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए आता भी नहीं हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, हमारे सरदार साहब ने कहा कि मौलाना लास्ट में थोड़ा